ٹائم کا مجھے نہیں بتایا گیا کتنا ٹائم ہے. بہرحال میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں جتنا کم ٹائم دے سکوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک سعادت ہے کہ میں سائیں حسین شاہ کے لیے آ کے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا گیا ہے. آج میری لائف میں پہلی مرتبہ میں مخاطب ہو رہا ہوں. جو میں سمجھتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں، سائیں کے سامنے شاید میں وہ ایکسپریس بھی نہ کر سکوں. میرے لیے شاید ایک بیریئر ہے کہ سائیں کی موجودگی میں لب کشائی نہ کر سکوں کچھ. لیکن بہرحال جتنا میرا فہم ہے اور جتنے مجھے کوئی الفاظ کا چناؤ میرے ذہن میں سمجھ آ سکتا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں. 91 سے وابستگی ہے سائیں حسین شاہ کی شخصیت سے میری. اس وقت ASO جوائن کیا تھا شکارپور سٹی یونٹ سے، اور تب سے آج تک کنیکٹڈ ہیں. اور شاید اس وقت اتنی چیزیں اہم نہیں لگتی تھی، سچ یہ ہے، کیونکہ وہ جو ہماری عمر تھی اس وقت اسٹوڈنٹ لائف تھی. میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، اور اب جب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے اوپر خدا کی ظاہری طور پہ سب سے بڑی نعمت تھی ہماری لائف میں. کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں عسکریہ کی تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی صرف ایک مذہبی کوئی تنظیم ہے جو کچھ احکام سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے کام کرتی ہے، نوجوانوں کو دروس ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں پرسنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ ایک وہ تحریک ہے جو ٹرانسفارم کرتی ہے، اور جس نے کیا ہے پریکٹیکلی. اور میرے سامنے کوئی اور مثال موجود ہو نہ ہو، میں خود اپنے آپ کو ایک مثال سمجھتا ہوں کہ میں اپنی پرسنل لائف ہو میری، پروفیشنل لائف ہو میری، یا جو تھوڑا بہت میں اگر اپنے دینی احکام سے واقف ہو پایا ہوں یا ان کی پریکٹس کر پایا ہوں جو تھوڑی بہت، اس میں اگر کنٹریبیوشن ہے میرے پیرنٹس کا، میرے گھر کا، وہ تو کانسٹنٹ میرے پوری فیملی کے لیے ہوگا جو انہوں نے کیا ہوگا. لیکن باقی جتنا کچھ ہے وہ اس تنظیم کو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے رول پلے کیا ہے. اور اس تنظیم میں اگر جا کے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے سب دوستوں کی کاوشیں ہیں، ٹیم ورک ہے، لیکن مجھے شخصیت صرف ایک ہی نظر آتی ہے، وہ حسین شاہ. میری اور اس میں کچھ عجیب باتیں بھی ہیں. جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ صرف فکری لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو فکری، آپ کی نشو و نما کے لیے آپ کو چیزیں فراہم کرتے ہیں، آپ کو تھاٹس دیتے ہیں جن کو آپ جا کے پریکٹیکل لائف میں اپنے اوپر عمل کرتے ہیں ان چیزوں پہ، اور اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں. وہ دین کے ہوں، دنیا کے ہوں، آپ کے جتنے عوامل ہیں. دین، دنیا دین ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جو میں سمجھ پایا ہوں. ہمارا یہاں پہ آج بیٹھنا یہ بھی عین دین ہے. تو اس ساری چیزوں میں کچھ لوگ صرف اس لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فکری لیول پہ اسٹڈی کی، چیزوں کو دیکھا، پروسیس کیا، پھر آگے تحریری صور پہ اپنا صورت میں یا کچھ تقریری صورت میں، دروس کی صورت میں فراہم کر دیا، اور لوگوں نے وہ چیزیں لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ایک کمال دیکھا ہے سائیں حسین شاہ کی شخصیت میں، کہ انہوں نے صرف وہ فکری لیول کا کام نہیں کیا کہ وہ فکری لیول کا کام کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ لائن ہے، ڈرا کر دی، جا کے اس پہ کرو. وہ عمل کیسے ہوگا، پریکٹس میں کیسے آئے گا، پلان کیسے ہوگا، وہ صرف پلاننگ پہ نہیں آئے، وہ ایکسیکیوٹ کیسے ہوگا. اس لیول پہ وہ ایک بندہ یعنی ملٹی ڈائمینشنز میں کام کر رہا ہو، وہ اپنے اوپر والی لیول کو چھوڑ کے آ کے آپ کی کارکن کے لیول پہ کھڑا ہو جائے کہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ پیپر ایسے بنے گا، یہ ایکسپینڈیچر ایسے لکھا جائے گا، یہ میٹنگ کی کارروائی ایسے لکھی جائے گی. یہ چیزیں وہ ہیں. محمد مجھے ٹائم آپ نے بہت کم دیا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. اگر یہ میرے خیال میں اکیلا یہ بات نہیں کر رہا
बहुत सारे यहाँ तो जो हाजरीन बैठे हैं, हम लोग आपस में बैठे हैं, ये बात सिर्फ सिंध तक की भी नहीं है कि सिंध की बात है, जैसे दोस्त ने शेयर किया हमारे कि जिन लोगों तक वो चीज़ें पहुँचती हैं, मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ आज आना चाहते थे, जिनसे साईं जिनको नहीं जानते, लेकिन हमने कोशिश जो की है, जब हमसे पूछते हैं कि भाई ये तुम चीज़ें कैसे कर रहे होते हो, ये तुम बोल रहे होते हो कहाँ से, ये चीज़ें क्या कर रहे होते हो, तो हम इसमें ख़यानत नहीं कर सकते कि हम बैठ के ये कहें कि ये हमारा कोई कमाल है इसमें। ये हमने कोशिश की है सिर्फ, लेकिन ये जो तार हमारी कनेक्टेड है वो उस शख्सियत से, हम ये कहते हैं, बरमला कहते हैं कि हमारे रूहानी उस्ताद जो हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे बेटे हैं, हमें जो जिन्होंने सिखाया है वो ये शख्सियत है। तो साईं के बहुत सारे ऐसे चाहने वाले हैं कि जो साईं की लिस्ट में शायद ना हो इस वक्त ज़ाहिरी तौर पे, और आज काफ़ी दोस्त आना भी चाहते थे, लेकिन मैंने, क्योंकि ये लिमिटेड थी हमारी गैदरिंग थी, तो मैंने कहा कि यार हम नहीं, उन्होंने कहा कि चले हम फिर बाद में कभी मिल लेंगे साईं से जाके, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जो हमारे पास जो मीडियम्स मौजूद हैं, जैसे भाई ने कहा कि हम उन चीज़ों को आगे फैलाने में, बाकी भी हमारी बहुत सारी हो रही हैं काविशें हमारी, अपना सोशल मीडिया के थ्रू, और बाकी IT का दौर है, बहुत एडवांस चीज़ें जा रही हैं, तो हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लेकिन एक हमारी, मैं समझता हूँ, शायद आप मुझसे एग्री ना करें, बदकिस्मती है कि हम उस तरीके से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके अभी तक, और ग्रेजुअली जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जो 90s का पीरियड था, उसके बाद से हमें जिस जहत में सफ़र करना था हम नहीं कर पाए। अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम डाउनवर्ड गए हैं, और वो एक, मैं समझता हूँ कि फ़िक्री एक तज़ाद था। इवन हम लोग भी साईं के फ़िक्र को नहीं समझ पाते थे, वो चीज़ें लगती थी कि इस दौर की शायद चीज़ें वो नहीं हैं, लेकिन वो हम गलत थे, हमें आज फील हो रहा है। आज के हमारे नौजवान को जितनी ज़रूरत है शायद 90s में वो ज़रूरत नहीं थी। इतना वल्नरेबल नहीं था हमारा नौजवान उस वक्त जितना आज है, और हम जितना हमें मज़ीद फ़ाल होना चाहिए था, हम उतने गैर फ़ाल होते चले गए, साइलोज़ में चले गए, आइसोलेशंस में चले गए। हम खुद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शायद बाकी लोग सब हों इस तरीके से एक्टिव, लेकिन हम कुछ इस तरीके से चले गए हैं कि हमारे पास इतनी, यानी कि एक होती है चीज़ें कि आप कोई दर्स सुन लेते हैं, यूट्यूब खोल लिया, कोई ऑडियो, कोई टेप था, कोई किताब पढ़ ली, आपके पास एक जिंदा बाअमल शख्सियत मौजूद है, और उसके लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि साइंस राब्ता करो और नहीं हो रहा हो, हम नहीं होते राब्ते में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। साइंस तो सबके लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं, और हम उन चीज़ों को, वो चीज़ें जो ले सके, उनको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करवाना और एक मिली तौर पे एक आवाज़ बना के उसको आगे चलाना हम नहीं कर पाए। हम शर्मिंदा हैं इस हवाले से। लेकिन फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला की तरफ से शायद हमारे लिए ये एक आई ओपनर भी है। हम आज की तकरीब कर रहे हैं, हमारे दोस्तों से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि हम इसको फेयरवेल का नाम नहीं देंगे। ज़ाहिरी तौर पे साईं जिस डिपार्टमेंट से रिटायर होकर जा रहे हैं वो साईं का अपना एक प्रोफेशनल लाइन थी, माजरत के साथ कह रहा हूँ, लेकिन साईं को हम रिटायर नहीं समझ रहे कि रिटायरमेंट होती है कि बंदा उस जॉब से सुबह होकर फिर कहीं रिलैक्स होकर कोई चीज़ कर रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि साईं की शख्सियत वो है ही नहीं कि हम कहें कि साईं कोई इस, जो हमारे लिए साईं हुसैन शाह है वो रिटायर हो रहे, नेवर ए टाइम। तो स्टिल वो है अपॉर्चुनिटी, और हमें अब भी उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, और हमें जितना मज़ीद, और ये जो हमारा हैदराबाद का या कराची का वो है, जो हम जैसे हमने बात की कि ये साल हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए, हम अच्छे से मुस्तफ़ीज़ नहीं हो पाए, हम क्या करें कि अब इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकें, हम खुद ऑर्गेनाइज हों, जो हम नहीं हो पाए। ये हमारी अपनी कोताही है कि हम जहाँ साईं के होते हुए भी हम ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए। लेकिन अगर हम आज भी आँख खोल लें, वक्त नहीं गया हमारे हाथों से, अगर हम आज भी ये चीज़ तय कर लें कि मैं हमेशा, मेरा दिल करता है कि हम 90s में वापस चले जाएं, टाइम मशीन हो, हम वहाँ चले जाएं जिस वक्त हमें नहीं पता होता था कि यार ये हमें कफन क्यों पहनाना सिखा रहे हैं। मुझे याद है जब मैंने कैंप्स अटेंड की, मैंने कहा यार मेरा क्या काम है कि मैं कफन जाके किसी को दूंगा, मैं किसी और को जाके अपना गुस्ल दूंगा मैयत को। आज मैं सोच रहा हूँ कि ये ब्लेसिंग्स थी उस वक्त मेरे ऊपर कि मुझे ये सिखाया गया, मुझे बताया गया, और आज मैं उस प्रैक्टिस में वापस जाना चाहता हूँ।
आज का नौजवान बता भी नहीं पाता, डिस्कनेक्ट है, बीच में गैप आ चुका है, सवाल नहीं कर पाता, पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं हम कर पाते। ये वो दौर आ चुका है, जिनके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। ये उनके हाथों में वो गैजेट्स हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। कि मेरी बात में असर इसलिए नहीं होता कि मैं बाअमल नहीं हूँ, और मेरे पास बाअमल शख्सियत मौजूद है जो फिक्री हवाले से भी उस लेवल तक है, उस नहज तक पहुंची हुई है, और अमली हवाले से भी वहां पे है, और मैं मुस्तफिद नहीं हो रहा, तो बदकिस्मती मेरी है। तो अगर हम ये अपनी आंख खोल लें और हम अगर ये तय कर लें कि हम इस दौर की नौयत को समझते हुए साईं की शख्सियत से उस तरीके से मुस्तफिद हों, और हम अपनी डायरेक्शन को अब भी अगर दुरुस्त कर लें, और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो हमारे लिए साईं हर वक्त अवेलेबल है, हम उनसे मुस्तफिद हो सकते हैं, उनकी चीज़ों को हम तरवीज कर सकते हैं। लेकिन तरवीज से पहले हम अपने आप पे अगर अमल करना शुरू कर दें कि हम कैसे अपने आप पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये यही तालीमात मोहम्मद वाले मोहम्मद जो हमें हमारी हमारी सतह पे आकर सही समझाते हैं, जो हम नहीं समझ पाते। तो ये गनीमत जानता हूँ मैं, और आप सबका इंतहा शुक्रगुजार हूँ। मैं टाइम ज़्यादा ले चुका, और साईं से भी ये इल्तमास है कि साईं हमारे लिए ज़रूर हमें दुआओं में याद करें, और हम सब के लिए, और हम इंतहाई मशकूर हैं पर्टिकुलरली कराची के जो हमारे जिस यूथ में और जहाँ पे अस्करिया की तरफ से ये तकरीब मुनक़्क़द की गई है, उनकी तरफ से कि आपने जो हमें आज तक टाइम, इस साल की बात हम नहीं कर रहे, हम अपनी सारी उम्र की बात कर रहे हैं, कि आपने हमारी शख्सियात में हमारी जितनी भी हमारी जो ये यहाँ हैं जवान हम हैं, हमसे आने वाले जो जहाँ तक हम पैगाम पहुँचा पाए, हम उनकी सबकी तरफ से आपके इंतहाई मशकूर हैं। और अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि आपकी तौफीक आप में मज़ीद फरमाएगा और आपको हमारे साथ रखेगा, और हमें ये तौफीक देगा कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी इन अनवार से मुस्तफ़ीद हो सकें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।